Okay, good morning everyone. Let us start today's lecture. Today is the 12th lecture for this chapter differentiation. Already in the last lecture, we have completed uh, fourth question of exercise 1.3, isn't it, students? Fourth question of exercise 1.3. Was there any question homework for all of you? Okay, so I hope you all have done that, right? Uh, it was regarding implicit functions, right? Okay, so let me share you the exercise screen now. So question number 1, 2, and 3 we have completed. I think 4 also I explained, students, right? Fourth also done, na? This part? Yes. So we have to do this fifth wala question. Huh? Fourth में क्या था? It was common thing to be proved. dy by dx is y by x. बट अभी कैसा है कि हमको अलग अलग dy by dx प्रूफ करना है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन है ये सब बच्चों. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो let me start with second question first. ठीक है, आई विल बी डूइंग फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस. बाकी तो बहुत ही सिंपल है. अभी जैसे फर्स्ट है तो you can see log x plus y equal to log xy plus p. P is a constant. So what you will do? You will just differentiate it. तो log का डेरिवेटिव फिर अंदर का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव फिर अंदर का डेरिवेटिव, उसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा. ठीक है, सो देर आर अराउंड 10 problems. I'll try to do around 4 problems. Remaining 6 problems you'll have to manage. Okay, so let us start with the second problem, students. If you look at here on the second problem, it is log of this to the base 10 is 2, and we have to prove something like this, right? So we will definitely start with whatever is given, right? So let me just start. Exercise 1.3, question number 5, and the second. It is given that log of x cube minus y cube whole upon x cube plus y cube इक्वल टू 2, और इस लॉग का बेस जो है वो है 10 है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू डू इज रिमूव दिस लॉग. सो हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया है कि जब कभी भी हम लॉग को रिमूव करते हैं और लॉग को दूसरे साइड लेते हैं तो लॉग का जो बेस हो जाता है वो यहाँ पर जाके बेस बन जाता है, राइट? सो दिस 10 विल गो एंड इट विल बिकम 10 टू द पावर 2. Isn't it, students? 10 to the power 2. So then I'll write here next step, x cube minus y cube upon x cube plus y cube is 10 to the power 2. Therefore x cube minus y cube upon x cube plus y cube is equal to 100. Isn't it, students? Now see, in this type of questions, you should always focus or observe what is to be proved, right? Now, if you look at the question, I'm going back to the textbook. We want answer in terms of 99x square upon 101 y square, isn't it? इसका मतलब ये नंबर हमको जरूर चाहिए, है कि नहीं? अगर सपोज मैंने इसी स्टेप में डिफरेंशिएट कर दिया यहां पर, तो व्हाट विल हैपन? डेफिनेटली मैं कर सकता हूं डिफरेंशिएशन, u बाई वी रूल लगाएंगे तो लेफ्ट में तो x और y आ जाएगा, बट व्हाट विल हैपन टू द डेरिवेटिव ऑफ 100 बच्चों? इट विल बी 0. एंड नाउ 100 इज द ओनली सोर्स थ्रू विच वी कैन गेट दैट 99 और 101.
वही अगर 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग कैसे लेकर आएंगे 99 और 101? तो ये जो ट्रू प्रूफ दैट में जो ये दिया हुआ है, इससे अपने को समझ में आता है कि हम इस स्टेज पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हमको इस 100 को कैरी करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, राइट, एंड थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके मैं इसको सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ओके, सो कैन यू जस्ट प्लीज सॉल्व दिस and get me the function in terms of y equal to, or maybe y cube है तो y cube equal to, can you do that? Come on fast, I'm waiting for a minute. I hope you all are understanding this point. Okay, so we will further solve it. So it becomes x cube minus y cube equals to 100 into x cube plus y cube, multiply inside the bracket 100 x cube plus 100 y cube, y को y के साथ, x को x के साथ ले लेंगे, तो इस 100 y क्यूब है, यहाँ पर माइनस वाई क्यूब, इसको इधर भेज देते हैं, या किधर भी आप कोई भी किसी को भी भेज दो। सपोज मैं y को इधर लेके आता हूँ, तो ये माइनस वाई क्यूब पहले से था, 100 वाई क्यूब इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, 100 एक्स क्यूब पहले से है, प्लस एक्स क्यूब इधर आएगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। This becomes 101 y cube equal to 99 x cube. Have you all understood this point? Come on, students. So don't you think we have got the numbers which we wanted? Now transfer this 101 to that side. So y cube will become what? Negative के साथ जाएगा, तो 99 upon 101 into x cube, right? And I think now we can easily differentiate it, isn't it, students? So I'll write here differentiating with respect to x. Y cube में तो चेन रूल लगेगा, तो y raised to 3 का डेरिवेटिव 3y raised to 2 into y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू राइट साइड में 99 अपॉन माइनस 101 is constant common, x cube का डेरिवेटिव will be 3x square. Transfer this 3y square to that side, then it becomes dy by dx is equal to 99 upon minus 101 into 3x square divided by 3y square. Now these 3 and 3 gets cancelled, so you got dy by dx is equal to minus 99, minus you can take it anywhere, numerator, denominator, or in between. Okay, x square upon y square, and this is what we wanted to prove. Yes, students, have you all understood? It's very simple question. Okay. So this is what we have proved. So very important what I said is that you should always look at the prove that part, that what exactly we need to prove, and accordingly you should go ahead with the steps. Here if I would have differentiated at this point of time, okay, then I will never get this 99 or 101. Whatever you do, कितना भी आप solve कर लो, आपको वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है? So this question now can be managed. Let me go ahead with the next question. Question number 4. Yes, all of you write down question number 4 now. I'll write down the to prove that part itself. I want to prove that
Acha, I'll write given also so that it will be a proper systematic presentation. So given was is e raised to x plus e raised to y is equal to e raised to x plus y. To prove that, what we have to prove? In the question it is given that dy by dx is equal to minus e raised to y minus x. ओके, क्वेश्चन देखने में बहुत ही सिंपल है और है भी ये सिंपल, हमको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा. So definitely we will start with whatever is given. So we have, what do we have? E raised to x plus e raised to y equal to e raised to x plus y. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सब चेन रूल का गेम है बच्चों, मैंने पहले ही बोला था. विदाउट चेन रूल यू कैन नॉट डू इवन अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशिएशन. इज इट क्लियर? सो लेट मी जस्ट गो अहेड विद द प्रूफ. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेज टू एक्स होगा, बट ई रेज टू वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू वाई इंटू वाई का डेरिवेटिव, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स. क्लियर? यहां पर भी ई रेज टू समथिंग है तो पहले तो वो हो जाएगा ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स प्लस वाई. लेकिन एक्स प्लस वाई का जो डेरिवेटिव है वो अब हमको करना पड़ेगा. तो अब x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. ये नॉर्मल इम्प्लिसिट का फंक्शन है, इसको अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दो पहले, क्योंकि तभी तो हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं, ऐसे तो हम नहीं ले सकते कॉमन. सो लेट्स कीप एवरीथिंग एज इट इज. हियर इट विल बी e रेज टू x प्लस वाई प्लस e रेज टू x प्लस वाई dy बाई डी एक्स. Okay, either you transfer this that side, whatever it is, you can transfer, solve and get dy by dx. Come on, do it. I'll give you 30 seconds, then I'll do it. Come on, do it fast. Okay, yes, have you all got that? चलो देखते हैं अभी हम कैसे करेंगे इसको. तो यू वुड हैव ट्रांसफर दिस dy बाई डी एक्स टू दिस साइड, so it would have become e raised to y dy by dx minus e raised to x plus y dy by dx is equal to e raised to x plus y minus e raised to x. We can take dy by dx common, so it will be e raised to y minus e raised to x plus y dy by dx equal to e raised to x plus y minus e raised to x. Transfer this to the numerator, denominator. Then this will become e raised to x plus y minus e raised to x. This will come to the denominator, e raised to y minus e raised to x plus y. Have you all understood up to this? Come on. सबको समझ में आ गया कैसे किया हम लोग ने ये? तो हमको dy by dx के टर्म में कुछ तो आ गया, बट what we want to prove is something different, isn't it? हमको प्रूफ करना है e raised to y minus x, तो वो तो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में. So definitely we will also try to simplify this. How? Students, can I write e raised to x plus y as
e raised to x into e raised to y, and then minus e raised to x. Come on, everyone. Yes, a raised to m plus n is because a raised to m into a raised to n, right? Similarly, denominator का first term as it is, I can write this e raised to x plus y is e raised to x into e raised to y, right? Now you will feel that, sir, I can take e raised to x common in the numerator. So I will be left with e raised to y minus 1. डिनोमिनेटर में सर e रेज टू y कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस ई रेज टू x. ठीक है, अभी भी आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा सर अभी भी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्रैकेट के अंदर ई रेज टू वाई माइनस 1 है, ब्रैकेट के नीचे वाला में 1 माइनस ई रेज टू एक्स है, इजंट इट? अभी भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कॉमन लेके कुछ मतलब नहीं हुआ, राइट? सो दिस इज व्हाट द स्टेप्स यू विल डू व्हेन यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, अभी यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट जो चीज बताने जा रहा हूँ, जस्ट मेक इट स्टार मार्क हियर. हाँ, यहाँ पर थोड़ा आपको अलग सोचना है बच्चों. ठीक है, अभी अलग क्या सोचना है, ये तो हम विजुअलाइज भी कर सकते हैं ऐसा थोड़ा सा कि अरे मैंने इसको स्प्लिट किया, कॉमन लेने के बाद कैंसिल नहीं हो रहा है, जो कि मैंने शो किया. ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ऐसा करना, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? सो हियर द स्पेशल पॉइंट इज you have to use your question in place of this. What was the question? Question matlab what was given? E raised to x plus e raised to y is e raised to x plus y. This is what we have started with. So we have e raised to x plus y there in the down. We can substitute as e raised to x plus e raised to y. Come on. मैं इसमें लॉ ऑफ इंडाइसेस नहीं लगा रहा हूं बच्चों. लॉ ऑफ इंडाइसेस और ये अलग है, इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस नहीं बोलते. जो मैंने अभी किया था वो लॉ ऑफ इंडाइसेस है. अब मैं जो करने जा रहा हूं वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. ऐसा कोई अलजेब्रा का रूल नहीं है कि ई रेज टू एक्स प्लस वाई को आप लिखोगे ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई. नो, we cannot write like that. But since it is given, I can write e raised to x plus y as e raised to x plus e raised to y. What I'm trying to say, are you all understanding my point? Don't consider that ये मैंने split करके लिखा है. स्प्लिट करके लिखूंगा तो बीच में मल्टीप्लीकेशन आएगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल. ये गिवन है कि e रेज टू जो x प्लस वाई है वो e रेज टू x प्लस e रेज टू वाई है, तो बस मैं उसको यूज कर रहा हूं. ठीक है, आई विल राइट फ्रॉम गिवन. सेम वे इन द डिनोमिनेटर एज वेल, e raised to y minus e raised to x plus e raised to y. And now I think if you open up the brackets, ऊपर तो कुछ चेंज नहीं होगा साइन में. Here minus will go inside, so minus e raised to x minus e raised to y. So here you can see e raised to x gets cancelled, e raised to y gets cancelled. तो अभी हमारे पास न्यूमरेटर में बच गया e raised to y, डिनोमिनेटर में बच गया माइनस e raised to x. अब ये e raised to x में लॉ ऑफ इंडाइसेस लगाऊंगा मैं, माइनस बाहर लिखा, e raised to y पहले से है, e raised to x ऊपर जाके हो जाएगा e raised to माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस e raised to y माइनस x. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव बच्चों. सो वी गॉट द आंसर. तो आप लोगों को देखो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, बट आपको क्लिक होना चाहिए कि मुझे इस स्टेप पे इस तरीके से सॉल्व करना है. ठीक है, सो काइंडली जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस स्टार्ट से. लेट मी नो जब इतना हो जाएगा तो मैं स्क्रॉल करता हूँ नीचे.
ओके, आई थिंक यहाँ तक हो गया होगा आपका. आई जस्ट स्लोली स्क्रॉल इट डाउन. Write it fast, students, so that we can do more number of problems. Yes, I think you would have done. Okay, so let us move ahead now to the next problem. The problem just after that, it's very simple. Sin inverse just उस side transfer हो जाएगा. Let me do now 6-1. Okay. So given x raised to y is equal to e raised to x minus y, and we have to prove that dy by dx is equal to log of x upon 1 plus log of x the whole square. Now students, looking at this question, एक चीज तो आपको समझ में आती होगी, आंसर लॉग में चाहिए, एंड डेफिनेटली हम सोल्यूशन तो गिवन से स्टार्ट करते हैं और उसमें तो लॉग नहीं है, तो हमको पहली बात तो लॉग लानी पड़ेगी ज़बरदस्ती. ठीक है. सो व्हाट आई डू फॉर दैट, ऐसे भी ये फंक्शन रेज टू फंक्शन ही दिख रहा है, तो वो क्लिक ही होना चाहिए कि ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला आ रहा है. तो मैंने टेकिंग लॉग किया, तो एक्स रेज टू वाई क्या हो जाएगा, वाई लॉग एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा x माइनस वाई लॉग ई, बट हमको मालूम है कि लॉग ई 1 होता है, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट. इज इट क्लियर टिल हियर? यस एवरीवन. ना आप लोग में से बहुत लोग रखेंगे कि इसके बाद डिफरेंशिएशन कर सकते हैं सर, इजी तो है ना, y कॉमन लॉग का डेरिवेटिव, फिर लॉग कॉमन y का डेरिवेटिव, फिर वैसे ही राइट में कर दो सर. बट अगर आप प्रूव दैट में देखोगे तो आपको log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर मिल रहा है. तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ध्यान से, इस माइनस वाई को इधर लाओगे तो प्लस वाई होगा, और वाई कॉमन लोगे तो 1 प्लस लॉग एक्स मुझे मिल सकता है. डोंट यू थिंक दैट स्टूडेंट्स? कम ऑन. हाँ, तो मैं क्या करूंगा, आई विल नॉट डिफरेंशिएट एट दिस मोमेंट, आई विल ट्रांसफर दिस वाई दिस साइड, सो इट विल बी वाई प्लस वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स. देन आई विल टेक वाई कॉमन, so it will be 1 plus log x equal to x. आई विल ट्रांसफर दैट. आप बोलोगे सर ट्रांसफर करोगे तो सर u बाई वी लग जाएगा. सर ऐसा ही कर दो ना, u इंटू वी तो ईजी है ना, u बाई वी से. क्या लगता है आप बताओ मुझे, u वी रूल अच्छा है कि u बाई वी रूल? बोलो. सब लोग बोलेंगे u इंटू वी रूल अच्छा है.
तो सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो? अगेन आई विल टेल यू द रेफरेंस ऑफ प्रूव दैट. अरे प्रूव दैट में डिवाइड बाय 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर है, तो आपको नहीं लगता अगर मैं u बाई वी करूंगा तो जो डिनोमिनेटर है उसका v स्क्वायर होता है? तो that I can get that answer right directly. Yes, so I'm doing it. Okay, so now I'll differentiate this with respect to x. So let's see what will I get. dy by dx, पहले डिनोमिनेटर कॉमन, इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 माइनस x कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स होल अपॉन v स्क्वायर. v स्क्वायर मीन्स व्हाट? 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा पहले टर्म में, इंटू 1 होगा तो x अंदर जाएगा तो ये तो 0 है, तो x इंटू 1 बाई एक्स कैंसिल होके वो -1 आ जाएगा. This is 1 plus log x the whole square as it is. Now don't you think +1 -1 gets cancelled? So we have got what we wanted. Yes? So it's log x upon 1 plus log x the whole square. This is our dy by dx. Is it clear everyone? Come on, is it clear? Yes, clear? Fine. So I hope you all would have understood it very clearly. Let me do the next problem now. Next problem is problem number 7th. Okay, 7th, 8th both are of the same type. So let me do 8th one, then you can manage the 7th one. Okay. So 8th question, what is given here is a very complex term. You can see it is, y is equal to root of log x plus log x plus root of log x plus dot 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 up to infinity terms. Okay, this is your y function, and we have to show that, prove that dy by dx is equal to 1 upon x into 2y minus 1. So prove that देख के तो लगता है कि ये बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए था. राइट? हाँ, मैंने शायद एक रूट मिस कर लिया. आई जस्ट पुट दैट रूट. इस हर टर्म के अंदर ऐसा रूट है, रूट ओवर लॉग समथिंग, ऐसे समथिंग, ये पूरा रूट है. ठीक है, ठीक है. सो लेट मी स्टार्ट प्रूफ, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है. तो आई विल स्टार्ट विथ वॉट एवर आई हैव, दैट इज द लॉग वाला टर्म. So consider y is equal to root of log x plus root of log x plus root of log x plus dot 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 up to infinity. ओके. अच्छा, अभी ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से सुनो. आप आपके दिमाग में बोलो, अरे वाई फंक्शन क्या है? तो सर ने बताया था क्या है. यस, रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ लॉग एक्स, ऐसा ही होगा ना. हाँ,
अभी जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ये कहाँ चला गया? एक मिनट ना स्टूडेंट्स। हाँ, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं लिखता हूं देयरफॉर दिस इज इक्वल टू y इक्वल टू रूट ऑफ log x प्लस प्लस मैं लिख रहा हूं y। मतलब मैंने क्या किया, यहां से लेके आगे तक के जितने भी टर्म्स है उसको y लिख दिया। चलो ये कितने लोगों को समझा मुझे बताओ। आप लोग सोचते रहोगे सर उसको y कैसे लिख सकते हो, आपने तो एक log x कम लिखा, इस log x को आपने लिखा और इसको आपने y लिख दिया, तो आपने तो एक log x कम लिखा सर। तो y तो ये पूरा होता है ना, आपने तो बस इसको लिया, एक नहीं लिखा। हाँ, तो सिंपल सा इन्फिनिटी के टाइप के क्वेश्चंस को याद करो बच्चों। आप जुहू बीच पर गए और जुहू बीच पर जाके आपने अपने बॉटल में जुहू बीच का सी वाटर एक बॉटल में रख लिया। अब क्या बोलोगे, पहले कितना था पानी सी के अंदर? इन्फिनिटी था, इनफाइनाइट वाटर था, राइट? नाउ आफ्टर टेकिंग वन बॉटल ऑफ वाटर, हाउ मच इज लेफ्ट? यस, हाउ मच इज लेफ्ट? It is still infinite, isn't it? Whether you subtract something from, अरे वन बॉटल का एक ड्रम लेके आ जाओ यार, still it will be infinite, isn't it? So y is a function, okay, which consists of infinite terms. And what are those terms? Root log x plus root log x plus root log x. So even if you consider this part which I've highlighted here, this is also like root log x plus root log x plus root log x plus root log x, लिखते जाओ ना infinite तक। अरे समझा क्या? यस, सो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये आपको क्लिक हो गया, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ दिस रूट कैन बी ट्रांसफर्ड दिस साइड, सो इट विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई, राइट? लुक लाइक log को हमने उस साइड ट्रांसफर कर दिया, एंड नाउ आई कैन सिंपली डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का डेरिवेटिव 1/x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को इस साइड लेकर आ गए तो 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इज 1/x। अब हम कॉमन ले सकते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स टेकिंग कॉमन, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस 2y माइनस 1 को नीचे लेकर गएंगे, डिवाइड करेगा वो, तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 2y माइनस 1, एंड दिस इज वॉट वी वॉन्टेड टू प्रूव, सो हेंस द प्रूफ। तो आपने देखा लेटर ऑन स्टेप्स आर वेरी इजी, द इनिशियल स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कन्वर्ट देम। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों? ठीक है, तो ऐसा ही इसके जो प्रीवियस वाला प्रॉब्लम था वो भी ऐसा ही था, तो यू कैन मैनेज दैट। इसके बाद वाला भी जो सम है पावर वाला, ये भी वैसा ही है, मैं उसका आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आप उसको कर लेना, ठीक है? 9 प्रॉब्लम में व्हाट वी हैव इज y इज इक्वल टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है? अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है, पहले दो स्टेप। सबसे मैंने क्या किया, पहले टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना,
x के पावर में x है, तो मैंने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स किया। अभी क्या होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स में, जो पावर में है ये पूरा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, इजंट इट स्टूडेंट्स? यस, और फिर इसका लॉग हो जाएगा। सो इट विल बिकम लाइक दिस, y इज इक्वल टू पावर कम्स डाउन, तो पावर कम्स डाउन मतलब क्या है, x रेज टू x रेज टू x रेज टू x डॉट 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 इन्फिनिटी बाहर, ये नीचे आ गया, तो बचेगा क्या, log x। क्लियर एवरीवन? बट नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है, अरे ये तो y है ना वापस से। अगर आप बोलोगे सर एक x कम हो गया, अरे इनफाइनाइट है, उसमें x कम नहीं होता, तो ये हो गया y इक्वल टू y log x। ठीक है, अब इसके आगे आप सिंप्लीफाई करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, सॉल्व करोगे, हाँ, तो थोड़ी देर करने के बाद आपको ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, 10th वन। 10th वन में गिवन क्या है, it is e raised to x is equal to e raised to y, and we have to prove that dy by dx is equal to log y the whole square divided by log y minus 1। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा सॉरी, राइट हैंड साइड y रेज टू x है, मैंने e रेज टू y लिख दिया, y रेज टू x करेक्ट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ विल यू स्टार्ट, डेफिनेटली वॉट एवर इज गिवन। क्या हो गया भाई, आई थिंक ये भी मैंने, अच्छा सॉरी बच्चों, मैं करेक्ट करता हूँ इसको, e रेज टू y है इक्वल टू y रेज टू x, अभी करेक्ट है। ठीक है, हाँ, सो नाउ आई विल कंसीडर, चलो पहला स्टेप क्या करेंगे बताओ, e रेज टू y इक्वल टू y रेज टू x, व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ, कम ऑन फास्ट। डेफिनेटली लॉग, क्योंकि y रेज टू x तो फंक्शन रेज टू फंक्शन है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते, हाँ, लॉग लेके या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इम्पॉसिबल, ओनली लॉग लेके ही पॉसिबल होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता ना, फंक्शन रेज टू फंक्शन का कैसे करोगे। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो हियर व्हाट विल आई गेट, y इक्वल y log e हो जाएगा, तो log e तो 1 होता है, तो जाने दो उसको, यहाँ पर हो गया x log y। ठीक है, बिकॉज log e इज 1, and I think now we can differentiate it। so differentiating with respect to x, अब हमारे पास क्या बचेगा देखते हैं, तो y का डेरिवेटिव तो dy बाई डी एक्स हो गया, यहाँ भी u भी लगेगा, x कॉमन, log ऑफ y का डेरिवेटिव, तो पहले तो 1/y हो जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस log y कॉमन है और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y इज डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लेते हैं, सो इट इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा log y, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ये सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है बच्चों जो मैं कर रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू log y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा y माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज log y।
ये टर्म को इस साइड लेके जाएंगे तो y विल गो इन द न्यूमरेटर, y माइनस एक्स इन द डिनोमिनेटर। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y उधर जाएगा तो वो हो जाएगा y log y डिवाइडेड बाई y माइनस एक्स। ठीक है, यहां पर आके आप स्टॉप हो जाओगे, राइट? क्योंकि ये तो नॉर्मल अलजेब्रिक सॉल्विंग था, तो ये तो हम कर पाए। बट इफ यू लुक एट द प्रूव दैट पार्ट, तो वहां पर है log y स्क्वायर log y माइनस वन, यानी log y स्क्वायर log y, यानी y x ये सब कोई टर्म है ही नहीं, राइट? तो क्या करेंगे अब हम? यस, व्हाट कैन वी डू नाउ? टेल मी। मुझे log y के टर्म्स में ही चाहिए, तो व्हाट कैन आई डू? किसको मैं कैसे रिप्लेस करूं? टेल मी फास्ट। Reference from y equal to x log y. Yes, very good. Definitely, we will take a reference of this. What reference will you take? You can get x ka value from here. Come on. I will call this as, suppose, number 1. So from 1, you can get x ka value. Because anyways, I don't want x, I want y ke terms mein. Right? So from 1, ठीक है, उसमें था y इक्वल टू x log y, तो दैट विल गिव मी x इज इक्वल टू y अपॉन log y। सो मैं इस वाले टर्म को रिप्लेस कर देता हूं एंड देन देखते हैं कि क्या हो सकता है। सो देन दिस बिकम्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू y log y एज इट इज होल अपॉन y माइनस y अपॉन log y। क्लियर बच्चों? नाउ आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में ऊपर तो वही रहेगा y log y, डिनोमिनेटर विल बिकम y log y माइनस वाई होल अपॉन वाई, होल अपॉन सॉरी लॉग वाई। ये जो होल अपॉन लॉग वाई है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो जब न्यूमरेटर में हो जाएगा तो वो लॉग वाई और लॉग वाई को मल्टीप्लाई करेगा तो लॉग वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो बचा वाई लॉग वाई माइनस वाई, उसमें से वाई कॉमन ले लिया तो वहां पर बच जाएगा लॉग वाई माइनस वन। एंड आई थिंक नाउ वाई वाई गेट्स कैंसल्ड, तो हमको जो प्रूफ दैट चाहिए था वो हमको यहाँ पर मिल गया, log y द होल स्क्वायर अपॉन log y माइनस वन। तो एक सम थोड़ा भले आपको लेंथ वाइज जरा आपको लगता रहेगा कि बड़ा प्रॉब्लम है ये, बट इजी है, नॉर्मल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, उसको सॉल्व करते आएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? यस, चलो इसको नोट कर लो। Let me know if you want me to scroll it down.
So are you all not confident कि ये जो prove that के questions है you can manage? See, practice is required. Huh? You all know practice makes man and woman perfect. तो डेफिनेटली अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही ये सारे सम्स क्रैक हो पाएंगे. वन टाइम सॉल्व करके डिफरेंशिएशन कैलकुलस का कोई भी चैप्टर नहीं होगा. तो यू हैव टू कभी भी टाइम मिले तो यू शुड टेक फ्यू प्रॉब्लम एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. क्वेश्चन देखो, उसको स्टार्ट करो सॉल्व करना. फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए. बेसिक कंसेप्ट जैसे देखो चेन रूल तो हर जगह है ना. आई स्टिल टेल यू डिफरेंशिएशन 1 और डिफरेंशिएशन 2 जो फर्स्ट 2-3 वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है, उसको अगर आपका ऐसा लग रहा है आप डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है आपको, वॉच दैट अगेन एंड अगेन. हाँ, उसको रिवाइंड करके रीप्ले करके बार बार सुनो, सारे सम्स उसके सॉल्व करो. तो डेफिनेटली आप लोग जो भी थोड़े ऐसा लग रहा है कि आप पीछे हो, वो आप लोग सब लोग कवर अप हो जाओगे. सी दिस इज पॉसिबल राइट नाउ बिकॉज वी आर इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, राइट. अभी तो पूरा कैलकुलस बाकी है. फिर 2-3 चैप्टर करने के बाद मैं आपको बोलूंगा यार डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है अभी इसमें, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे. तो इतना सारा पोर्शन करने के बाद आप डिफरेंशिएशन नहीं रिवाइज कर सकते. ठीक है, तो अभी राइट टाइम है. वी आर ऑल्सो गोइंग वेरी स्लो. ऑलमोस्ट दिस इज 12th lecture. People complete differentiation is in 6 lectures, but I'm giving you maximum time here for this differentiation chapter so that your basics must be strong. Integration I may not take much time, but हाँ प्रोवाइडेड दैट अगर आपको डिफरेंशिएशन आता हो अच्छे से, क्योंकि वहाँ भी हर एक सम में आपको सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंशिएशन सब लगने वाला ही है. तो अगर आपने अगर यहाँ भी अच्छे से नहीं किया तो फिर मुझे इंटीग्रेशन में भी मेरा ज़्यादा टाइम चला जाएगा. ऐसे वो है भी बड़ा चैप्टर, ऐसे भी उसमें ज़्यादा लेक्चर्स लगते हैं, बट स्टिल अगर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो और भी ज़्यादा लग जाएगा. ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर नाउ. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? यस, डन. ओके, सो लेट मी गो बैक टू द टेक्स्ट बुक बच्चों. अभी जो भी क्वेश्चंस मैंने बच्चों छोड़े हैं वो आप खुद से ट्राई कर लेना. साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन बन जाएगा, साइन 31/2 आ जाएगा. हाँ, फिर हम इसको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ये तो 6 वाला से 8 के जैसा ही है. 9th मैंने हिंट दे ही दिया, फर्स्ट वाला भी मैंने हिंट दे ही दिया. सो आई थिंक नाउ यू कैन मैनेज, राइट. So no problem, we will stop for the day here. Next time we will start with another type, that is derivative of parametric functions. So logarithmic we have covered, implicit we have covered. Now the next will be derivative of parametric functions. That we will do it in the next class. Okay students, so thank you very much. Okay, see you in the next lecture. Bye bye.